Okay. So, yes. So, coming Sunday, we are going to celebrate Mother's Day. And I just remember a few lines of one very beautiful song sung by Sunidhi Chauhan. So, it's like Ma, right? So, yeah, I dedicate this song to all of you. Yeah, just bear with me. I'm not a very good singer, but just trying it out. धूप में छाया जैसी प्यास में नदिया जैसी तन में जीवन जैसी मन में दर्पण जैसी हाथ दुआ वाले रोशन करे उजाले धूप में छाया जैसे प्यास में नदिया जैसे. So yes, mothers are so very beautiful. I mean, like whenever we have certain challenges or something, we are happy, we are sad, we are angry, for all kinds of emotions. Our mothers are there. We can vent out everything on her. So we have, God has given us such a beautiful gift. But yes, in today's session, we are not going to talk only about mothers, definitely. It's about parents, since we are talking about conscious parenting circle. So I will not take much time of yours, and I would like to hand over the platform to Nandini. Yeah, Nandini, this is all yours. Please go ahead. And today, yeah, I just would like to tell one thing about Nandini. Like, she has her older parents at home. They are not well, but she showed up. That commitment, I mean, that brought her here. So let's clap for Nandini. That is amazing. That's amazing. Love you Thank you. so much, Nandini, for Thank showing you. up, coming, to conduct the session. Now, yes, the stage is yours. I'll play the video of Vicky first. Yeah, please. Yes, start with that. Yeah. Thank you. Thank you so much. So I'll share my screen. थोड़ा सा 2 स्लाइस बेटा, ज्यादा नहीं डाल रही. नानू ने कहा है थोड़ा सा दे दो आशी को, ठंडा ठंडा. तो आप खाते हो बटर? I request everyone, please go on mute. Please. Thank you so Yeah. much. Yeah, so Nandini has played the video for us. This Yes. is an introduction to our Wiki Equitable Parenting Council members. Some of them are, of course, not right now with us. They have just contributed and moved ahead. But yes, many of them are still with us. There. So, yeah, thank you. Thank you. Thank you. I will stop sharing. I will stop sharing. So good evening, everyone, and a warm welcome to Rekha ji. Can you hear me? Yes, yes. So I will read out. We are very glad to have you this evening with us, Rekha ji.
From your biodata, I have been given to understand you have 35 years of experience teaching biology to NEET aspirants at Focus Education. You also work as a compassionate parenting coach. You are a certified child and adolescent counselor, mindfulness, emotional and intelligence coach, NLP practitioner, positive discipline expert, and a career coach. Wow, that's a lot of experience. And you're also a proud mother to two grown-up sons. You support parents, teachers, students in building calm minds, strong relationships, and confident behavior. You have conducted 40 plus mindfulness sessions in schools and also lead student sessions on Focus Today and Succeed Tomorrow. And you also train teachers with practical tools for emotional safe classrooms and positive discipline. Rekha ji is the Vice President at Prema Peeth, working for inculcating moral values in schools, and a member of Nav Chetna Women's Front, working for child rights. Rekha ji, thank you so much for being with us this evening. And I request you to take the session forward. Thank you so much. And thank you, Krishna, for being such a wonderful co-host to me. Thank you. Thank you. Thank you so much. Over to you, Rekha ji. Thank you, Nandini, for this beautiful introduction, and a very good evening to all my renowned members of this forum, and also feeling privileged to be a part of this beautiful community. And once again, I would like to express my heartfelt gratitude to all of you for sparing your precious time to listen me. And the topic is very close to my heart, that is me and my parents, right? Everyone's close topic. Actually, this topic is very, and on this occasion, like Women's Day is coming, so this is right time to very warm topic to talk on this beautiful forum. Yes. First, I would like to give small intro of my identity, right? I am a learner, listener, compassionate, authentic, and a grounded human being. And I strongly believe that real growth begins with connection and real conversation. And before going to start, I am going to take you on a simple and beautiful activity. Please allow me to share the screen. Okay. Just today we are going to not just talk about, but reflect upon this topic, that is, have you allowed? Okay. Yeah, you can share. Are you able to see my screen? Yes, it's visible. Okay. Only I think full screen. Yeah, you have already done. Thank you. Right. Thank you. Yeah. Right. Yeah. This is my introduction, which already done by Nandini. Just a second. Yeah, our topic is me and my parents. Somebody is like on screen scratching. Don't touch, please. Don't touch the screen. Otherwise, the impressions are coming on the screen. Yellow, like, right? Okay. We are going to reflect upon this topic. Now, this is the activity.
First of all, I would like to congratulate all of you. Happy Mother's Day. On this beautiful day, अगर हम ऐसा समझें, ये हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, if just assume if my mom was a fruit or animal or weather or a song, सॉन्ग तो अभी अभी कृष्णा जी ने बहुत ब्यूटीफुल गाया ही है, एंड सुपर पावर, आप जस्ट 1 मिनट एक्टिविटी है, शी वुड बी, फिल इन द ब्लैंक, आपने मेंशन करना है, जस्ट थिंक अबाउट, विल एंजॉय, रिलेट टू दिस वर्ड, relate this word to your mom, right? Yes. Anybody else would like to share? Or I think I should start. If I think my mom was a weather, right? She would be like my, क्या बोलेंगे उसको, कि sometime intense but life giving. बोलते हैं ना, ठंडी हवा का झोंका, मॉनसून आता है कि मॉनसून आया और हमें एक इतनी गर्मी में एक अच्छा सा सूदिंग फीलिंग दे गया. It is like that. Now your turn. Who would like to share? Our session is interactive actually, so please Yeah. be honest with you also. Yes, Krishna. Okay. So if my mom was a fruit, she would be like coconut, hard from outside, very disciplined and all, but soft from within, with like water Nice. and all. Thank you. Nice. Anybody else? Yes, come on. If my mom was a fruit, I would prefer orange. Sometimes very sweet, sometimes sour, but all the time taste. Interesting. Thank you, Krishna ji. Thank you, Rashmi. Yes, now, anybody else? अब कोई सॉन्ग भी गा के दिखा सकते हैं, एक लाइन तो और अपनी मदर के लिए कोई आपको सुनाती हो, या ऐसे लगता हो आपको, या कुछ भी, एनिमल भी आप क्या सोच सकते हो. अगर मैं ही सोचूं एनिमल, तो मेरे माइंड में जानते हो क्या आता है? लायनेस, प्रोटेक्टिव, ऑलवेज प्रोटेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. Used to think like that. Okay then, nice. Happy Mother's Day again. Now we'll start our session with a simple story. I would like to share. मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ कृष्णा जी, ये स्क्रीन बाद में हम करेंगे, राइट? यस, जस्ट अ सेकंड. यस, तो मैं सेशन करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा स्टोरी शेयर करना चाहूंगी. One mother came to me and she was very like frustrating kind, little bit guilty. She told कि रेखा जी, मैं अपने बच्चे से इतना प्यार करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों आई रिएक्ट समटाइम, लाइक कि छोटी छोटी बात पे मुझे गुस्सा क्यों आ जाता है. मैं नहीं चाहती कि गुस्सा करना, फिर भी मुझे गुस्सा आ जाता है. ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? बाद में मुझे ही बड़ा गिल्ट फील होता है. अब ये क्या बात थी, ये होमवर्क नहीं किया, या ऐसे नहीं किया, या ऐसे कर दिया, छोटी छोटी ये ग्लास यहाँ क्यों रखा, वहां क्यों नहीं रखा. इन बातों पे कोई गुस्सा वाली बात तो नहीं है, बट फिर भी पता नहीं कि उस टाइम मुझे क्या हो जाता है और मेरे को गुस्सा आ जाता है. ओके, देन आई टोल्ड हर, गुस्सा आ जाता है या गुस्सा निकल जाता है, दोनों बातों में डिफरेंस है. आर यू एग्री विद मी? आप चैट भी यूज कर सकते हैं, प्लीज मेक इट इंटरैक्टिव, है ना, कि गुस्सा आ जाना और गुस्सा निकल जाने में डिफरेंस है.
तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ गई कि ये क्या है, मैंने तो इस तरफ कभी सोचा ही नहीं, मुझे तो गुस्सा निकल जाता है कह लूं। एंड आई टोल्ड हर, टेक अ ग्लास। आपको दिख रहा है ना ग्लास, ये एक एक कप दिख रहा है ना, तो मैंने कहा कि इसमें जरा ऐसे वाटर पोर करो, जस्ट स्मॉल एक्टिविटी। ऐसे डाला, डालते गए जस्ट, ये देखो ये देखो ये देखो, डाल रहे हैं डाल रहे हैं डाल रहे हैं, पोर करते जा रहे हैं, हुआ क्या अब, ये देखो, ओवरफ्लो हुआ, ओवरफ्लो हुआ ना। वो क्यों हुआ? मैंने उसी से पूछा, व्हाई इट हैपेंड? शी टोल्ड, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी फुल, दैट इज व्हाई इट ओवरफ्लोड। तो फिर इसका मतलब क्या है? आपके अंदर ऑलरेडी फुल है आपका कप, यानी कि आपका आप फुल हो। जो ओवरफ्लो हुआ है वो आपका निकला है, ना कि आपने गुस्सा किया। वो ओवरफ्लो हुआ है आपका, मतलब आपका गुस्सा निकला है। देन शी अंडरस्टूड लिटिल बिट। तो आज हम अपना सेशन यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ये एक्चुअली कप क्या है हमारे लिए। सभी हम सबके पास ऐसा एक कप है, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये हम एक्सप्लोर करेंगे आज हम। एक तो कि इसके साथ ही क्या है, इस कप में हमें हमारे पास क्या क्या है। तो ये देखो, यहाँ मैं स्क्रीन भी शेयर करूंगी। इस कप में ऑलरेडी व्हाट वी रिसीव्ड इन आवर चाइल्डहुड, व्हाट वी मिस्ड इन आवर चाइल्डहुड, हर कप कुछ ना कुछ उससे ओवरफ्लो हो करके हम जब अपने एडल्टहुड में आते हैं, जब हमारा टाइम है अपनी पेरेंटिंग में, तो वो हमारा निकल जाता है। इट इज नॉट लाइक कि आप सिचुएशन पे गुस्सा हो रहे हो, राइट? तो ये हमारा सारा उसी के ऊपर है कि हम हमारा जो ऑलरेडी पैटर्न है वो कैसे आ रहा है। तो आज हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो जस्ट मैं शेयर करना चाहूंगी अगेन ये स्क्रीन आपसे, और हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। ये देखो ये क्या है, या आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस नंदिनी? Yes, it is visible. Yes. राइट, योर रिएक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट हैपेंड, कि सिचुएशन में क्या हो रहा है उसके लिए नहीं है रिएक्शन, कि ये क्यों किया ये क्यों नहीं किया। नो, इट इज अबाउट व्हाट इज ऑलरेडी इनसाइड यू, जो बाहर छलक के आ गया, जो आपका निकल गया, वो रिएक्शन आपका आ गया, आपने चाहा नहीं है। वो कॉन्शियस रिएक्शन नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपका सब कॉन्शियस माइंड में जो है, बस वही छलक के बाहर आ गया। दैट इज वाई आपको इस तरीके से गुस्सा आया। एनीबडी रिलेटिंग टू दिस सेंटेंस? एनीबडी? कभी आपके साथ हुआ हो, यार मेरे को भी आ जाता है गुस्सा, तो मैं भी कभी कभी रिएक्ट करती हूँ, कोई शेयर कर सकता है? यस प्रीति? होता है ऐसे, ना चाहते हुए भी आप शेयर भी कर सकते हो, अगर करना चाहे कोई भी। हुआ है कभी? यस कृष्णा जी, यस, है ना? तो हम नहीं चाहते, लेकिन बाद में खुद ही गिल्ट भी होते हैं, अरे मुझे गुस्सा नहीं, मैंने क्यों किया। तो ये हम देखते हैं कि क्यों है ऐसे, थोड़ा इसी के बारे में बात करेंगे, ताकि हम आगे फिर कन्वर्ट करें अपने रिएक्शन को रिस्पॉन्स में। उसके लिए फिर हमें आगे बढ़ना है। तो हम आज क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टुडे दीज 3 questions, right? Not just explore, I would say reflecting on these 3 questions. Why do I react like this? जो कि अभी अभी हमने देखा। What am I carrying inside? कि ऐसा क्या है मेरे अंदर जो मेरे अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से मेरा गुस्सा छलक आता, निकल जाता है। And how can I respond differently? Right? तो आज हम इसके बारे में करने वाले हैं। इट इज जस्ट एन इंटरएक्शन इंगेजिंग सेशन, राइट? तो इसमें कोई यहाँ पे कोई लेक्चर या ऐसा कोई मैं न्यू नॉलेज शेयर नहीं करूंगी। यहाँ पे जस्ट हम पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, और उसी को अवेयरनेस में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। यस, हियर व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्री, right? Healthy tree. You can see that healthy tree
assume you are a tree, right? This is trunk, and these are the branches of trunk, and these are leaves, and fruits are like our children. But roots are not same. कभी भी हम किसी ट्री को देखते हैं तो रूट्स तो हमें नहीं दिखते, राइट? बट क्या रूट्स का कोई रोल होता है एक ट्री को बनाने में? यू कैन रिस्पॉन्ड. है कोई रोल रूट का? इंपॉर्टेंट रोल तो रूट का ही है ना. रूट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ ट्री, फॉर ग्रोथ ऑफ अ ट्री, राइट? तो अब ये रूट्स कहाँ से आती हैं ये हम देखेंगे. ये रूट्स कौन, ये एक्चुअली ये रूट्स ही है जो हमारे ग्लास को फिल करता है, राइट? तो वो रूट्स जो हैं दैट आर प्रिपेयर्ड बाय, दैट आर मेड बाय आवर पेरेंट्स, मदर एज वेल एज फादर, राइट? देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स, राइट? तो अगर हम सोचें जैसे कि मदर डे सेलिब्रेट भी करने जा रहे हैं कि हु आर, कौन एग्री करता है कि वी आर वेरी क्लोज टू आवर मदर मोर देन फादर? आवर कनेक्शन इज मोर टूवर्ड्स मदर देन फादर. कहीं ना कहीं मुझे लगता है 90 मोर देन 90% लोग मानते हैं. वैसे भी सबका रिश्ता मदर से ज्यादा होता है क्योंकि +9 मंथ्स कर लो जिसमें हम मदर के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, राइट? और मोस्ट ऑफ द टाइम हम चाइल्डहुड भी हमारा मदर के साथ ही बीतता है, तो कहीं ना कहीं है. तो अगर हम देखें इमोशनल पार्ट है, इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, इवन ना भी एक्सप्रेस करना वो भी हम वहीं से लेकर के आते हैं. और अगर हम फादर को देखें उनका रोल कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ, इस तरह के रोल्स में हम फिट पाते हैं फादर को. तो वो हमारे अंदर वो कहीं ना कहीं इनकलकेट कहाँ से होते हैं? जो हम चाइल्डहुड में देखते हैं वहीं से हम देखेंगे. तो ये रूट्स जो हैं अगर हम देखें तो इसको हेल्दी रूट्स होंगी तो ट्री भी अच्छा होगा. और अगर ऐसे होंगी तो आप देख सकते हो 2 तरह के मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं. ये देख सकते हो दोनों पिक्स में हमें रूट्स तो दिख नहीं रही हैं लेकिन उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है. दे शेप एवरीथिंग. अगर रूट्स हेल्दी हैं तो ट्री भी हेल्दी है, फ्रूट्स भी हेल्दी हैं. अगर रूट्स आर नॉट सो हेल्दी, दे आर वीक और नॉट सो हेल्दी, तो अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि ट्री भी कैसा दिख रहा है. ना तो हेल्दी फ्रूट्स लगेंगे बट उतने हेल्दी नहीं होंगे. ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कितना हैप्पी है फ्रूट, हेल्दी एंड हैप्पी. और ये ऐसे लग रहा सैड, राइट? तो ना तो ये हेल्दी है ना ही ये हैप्पी है, सैड दिख रहा है. तो इसमें क्या है ना कि इसमें हम देखते हैं कि ये किस तरीके, ये क्यों रूट्स ही ये रोल प्ले करती हैं. जैसा हमने देखा रूट्स आर प्रिपेयर्ड बाय आवर पेरेंट्स. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, आप देख सकते हो इसके अंदर, मैं एक नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ. पहले ये वाली देखो, आप ही बताओ इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? आप इससे क्या आइडिया लगा रहे हो, क्या नजर आ रहा है आपको? फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी रूट्स को प्रिपेयर करने में किसका रोल है. हाँ जी, कोई शेयर करना चाहेगा? कम ऑन. यस, ये तो क्लियर है कि मदर फादर है, बेबी बैठा है, राइट? मदर फादर आपको क्या दिख रहे हैं? हैप्पी दिख रहे हैं या सैड दिख रहे हैं? क्या क्या लग रहा है? Yes, they are happy, and the And child is baby is observing them. exactly, not just observing. Actually, she or he is absorbing like a sponge. तो हम बोल सकते हैं ना कि the relationship between mother and father prepares the soil of the tree. तो मैं इसको relationship को अगर देखूं तो it is the soil. आप देख सकते हो इसमें, देखो सॉइल हेल्दी है तो ट्री अच्छा है. चाहे कुछ भी हो, कितना ही पानी डाल दो, अगर सॉइल अच्छी नहीं है, फर्टिलाइजर वाली सॉइल नहीं है तो ट्री अच्छा नहीं होगा. लेकिन इसमें देखो कितना कैसी दिख रही है सॉइल, बिल्कुल ड्राई भी है ना, इतना फर्टाइल सॉइल टाइप नहीं लग रही है, राइट? जितनी अच्छी सॉइल होगी इट मीन्स
जितना अच्छा रिलेशन होगा उतना ही अच्छा आगे क्या होगा, ट्री की ग्रोथ होगी, राइट? देयर रिलेशनशिप बिकम्स द ब्लूप्रिंट ऑफ अवर्स, यू कैन से द पैटर्न ऑफ अस, कि हम वही पैटर्न को जो कि पास्ट में हम नहीं छोड़ पाते, वो पैटर्न ट्रैवल करता है हमारे साथ और वो कहीं ना कहीं हमारा ब्लूप्रिंट बनते जाता है, राइट? आपने कभी, प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड इन दिस सेशन ऑल्सो, आपने कभी देखा होगा कभी मदर के बीच में ऐसा कोई स्मूथ रिश्ता तो कभी नहीं होता, अभी हमारे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे चलता है। कभी फादर ने ऊंची आवाज में बोला होगा या गुस्सा किया होगा तो मदर का क्या रिएक्शन रहा होगा। कुछ कोई भी शेयर करना चाहे ऑनेस्टली तो कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। प्लीज, you can come on camera also, otherwise you can share. Anybody wants to share? तो चलिए मैं शेयर करती हूँ। मैंने अक्सर जो आज मैं रिकॉल करती हूँ अपना चाइल्डहुड, तो मुझे क्या दिखता है, कभी कभी किसी ऐसे सीन में कि फादर ने ऊंची आवाज में जैसे बोला कुछ, मतलब ऑब्वियसली जो मेरे लिए तो उस तरह से इजी नहीं था, टॉलरेबल नहीं था, ऊंची आवाज में बोला, तो मदर का क्या रिएक्शन था मैं वो बोलना चाहूंगी कि हम कैसे उसको आगे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मदर वाज लाइक कि चुप रहना, बोलना नहीं, बस मतलब जस्ट साइलेंट। मैंने अक्सर ये नोटिस किया, कभी भी कुछ भी हुआ, वैसे तो उतना हुआ नहीं, लेकिन कभी भी उन्होंने बोला ऐसे शाउट करके, तो मेरी मदर ने कभी भी उनको ऐसे पलट के या आर्ग्यू करके या ऐसा कभी नहीं दिया, चुप 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 रहने का मैंने नोटिस किया। तो ये चीज मेरे को आज भी माइंड में है और ऐसे लगता था कि वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने से अच्छा उनको लगता है कि यार मुझे ना आर्ग्यू करना पसंद नहीं, बस मुझे पीस पसंद है, बस ये ना हो। मैं आर्ग्यू करने से उनको हमेशा एक डर था, तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को, कभी कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है, दो हैं तीन हैं लोग, तो उन्होंने कभी भी जैसे रिजॉल्व करने की कभी भी मैंने देखा ही नहीं उनको। तो वही फैक्टर मेरे अंदर भी आया। मैंने रिसेंटली अपने अंदर ये फैक्टर नोटिस किया कि यार मैं भी कहीं ना कहीं बचती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो बस उसको साइड करो। मैंने नोटिस किया ये पैटर्न अपने अंदर, मैं उस पर काम कर रही हूँ। आई एम रियली ऑनेस्ट विद यू ऑल कि मैं उसके ऊपर सीरियसली काम कर रही हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड में लेयर बना देता है, इमोशंस को एक्सप्रेसफुल ना करना, राइट? आर यू एग्रिंग, नंदिनी? एम आई Ma'am. ऑडिबल? Yes, ma'am, you're audible. Yes, yes. Right? And this was about conflict, right? And one more thing कि जैसे मैंने अक्सर कह देते हैं लोग, रेखा यू आर वेरी गुड एट रैपो बिल्डिंग, आपका इतना अच्छा है कनेक्शन लेवल, आप कुछ सेकंड्स में ही आप किसी के साथ एकदम कनेक्शन बना लेते हो। तो वो मैं खुद भी हैरान, मैंने एक जगह से नहीं बहुत सारी जगह से ऐसा सुना। मैं स्कूल का भी सोचती हूँ, कॉलेज का भी, अभी कहीं पे कोई पब्लिक स्पीकिंग में भी जाती हूँ, या रिसेंटली मैंने एक सीनियर सिटीजन क्लब में भी एक प्रोग्राम किया, वहां पर मुझे बहुत सारे इस तरह के कमेंट मिले। तो स्कूल में भी एक प्रोग्राम में ये मुझे कमेंट मिला, तो मैंने इसके ऊपर सीरियसली सोचा बैठ के और नोटिस किया अपने मदर का पैटर्न। हमने अभी रिसेंटली विजिट किया, शी वाज मतलब वेरी सिक, और उन्होंने जिस तरह से हमें मतलब जिस तरह से मिलना जुलना हुआ, मैंने कहा यार कौन कहेगा आप बीमार हो, जैसे आप इतना स्माइलिंग और बात कर रहे हो। मेरे हस्बैंड भी हैरान कि मम्मी तो बहुत बीमार थी तो लग ही नहीं रहे हैं, ये कैसे, मतलब इतना वार्म वेलकमिंग उनका एटीट्यूड, नॉट जस्ट विद अस, मतलब विद एवरीबडी। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ ना, तो ये पैटर्न ट्रैवल होकर के आया। ऐसे ही मैंने नोटिस किया अपने ब्रदर का पैटर्न सेम बिल्कुल। तो मैंने उससे बल्कि डिस्कस किया कि ये पैटर्न हमारे अंदर कैसे आया है, तो ये है कि मदर से आया है ये पैटर्न। तो कुछ होता है ना, कुछ अच्छे अच्छे पैटर्न, मतलब कुछ अच्छी चीजें, कुछ ऐसे भी जो हमें लगता है कि यार ये अफेक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ को भी और आगे भी। कृष्णा जी, आर यू स्पीकिंग समथिंग?
Okay, okay. No. Actually, my daughter was asking ki, who is shouting in this pic. So I was just explaining ki, हाँ, Rekha ji has brought it to explain the relationship. Okay, okay. Thank you. And and one more thing, how to express. Even I would say how to not to express. भी चुप रहो, बोलो मत. ऐसा मैंने बहुत बार देखा कि नो तो बोलना ही नहीं है किसी को. ये भी बहुत बार मैंने देखा कि आपको यस बोलना है, सामने वाले को आपको नाराज नहीं करना. ये मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए. हमेशा आप यस बोल के कई बार अपने ऊपर लेते हो, अपने को ही आप कहीं ना कहीं परेशान करते हो. तो ये मुझे लगा. तो एनीबडी एल्स वांट टू शेयर अबाउट दिस? आई शेयर्ड my childhood, my experience, relationship of my parents. So anybody else want to share? Yes. Otherwise, एक और मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है ये शेयर करना चाहूंगी अब इसी रिलेशनशिप के बारे में, कि कैसे ब्लूप्रिंट बनता है ये, और हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में आपको शेयर करने जा रही हूँ अब. वी आइदर रिपीट और ओवर कंपनसेट. मैंने अभी अभी बताया, रिपीटिशन करते हैं हम कुछ पैटर्न को. इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी. मुझे अभी भी याद है कि मैं जब कौन सी क्लास में थी, आई थिंक 7th क्लास की बात है. 7th क्लास में क्लास टेस्ट हुआ था एक 50 मार्क्स का, राइट. तो उसमें मेरे आए थे 44 मार्क्स. मुझे इसलिए याद है कि उस दिन क्या हुआ था, आज मैं रिलेट कर रही हूँ अपने बच्चों के साथ. 44 मार्क्स. तो मैंने दिखाया अपनी मॉम को. आई वॉज हैप्पी कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, 50 में से 44 आए हैं. तो मेरी मम्मा ने देखा और साथ ही, अच्छा 44 आए हैं. साथ ही उन्होंने ये बोल दिया, मतलब न्यूट्रल एक्सप्रेशन, कितने बच्चों के हाईएस्ट कितने मार्क्स आए हैं. आई टोल्ड 49 होंगे, 49 थे शायद, ऐसे ही कुछ. कितने बच्चों के आए हैं? तो मैंने कहा कि 4 बच्चों के आए हैं. अच्छा, अगली बार तेरे आने चाहिए. तो मतलब मेरा जो था ना, अब इसको कैसे लोगे आप, देखो कि किस तरीके से उस टाइम क्या मेरे ऊपर एक्सप्रेशन मेरे क्या हो सकते हैं. मतलब मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा, यू कैन इमेजिन, राइट. अब उस टाइम मैं पता नहीं था कि ये क्या था, लेकिन यही चीज मेरी कैसे रिपीट हुई, मैंने कैसे इसको रिलेट कर किया. आज मेरा बेटा छोटे बेटे की ही बात है, रिसेंट तो नहीं है, काफी टाइम हो गया, अब तो वो बहुत बड़ा है. वो था 9th क्लास में. छोटे बेटे की बात कर रही हूँ, अब तो वो 23 इयर्स का है. 9th क्लास में था. उसने कहा कि उसके कोई थे क्लास एग्जाम थे, ऐसे ही कुछ सेमेस्टर एग्जाम, कि मम्मा मेरे साइंस में ना 95 आए, उसने बोला. तो मैंने सेम, मतलब अच्छा, बस अच्छा बोल के ठीक है, अच्छा करके, अच्छा हाईएस्ट कितने हैं, सेम. मतलब मैं खुद हैरान हूं कि मैंने जिस तरह से बोला, अच्छा हाईएस्ट कितने हैं, कितने बच्चों के हैं, तेरे कौन से रैंक पे हैं, मतलब मैंने ये इस तरह की बातचीत शुरू की. तो मतलब ही वॉज लाइक कि मम्मा खुश नहीं हुई मेरे मार्क्स बताने से. मतलब उसकी खुशी को भी मैंने कहीं ना कहीं सप्रेस कर दिया. यू आर नोटिसिंग ना कि कैसे वो पैटर्न मैंने रिपीट कर दिया अनजाने. कोई मैंने ऐसा तो नहीं किया. आज मैं उसको सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि ये क्या था, कि मैंने तो उसका वो एक तरह से छीन लिया. मतलब उसकी जो थी हैप्पीनेस, वो मैंने उसकी सप्रेस कर दी, छीन ली. कुछ भी मैं बोलूं कि उस टाइम का, उस मोमेंट का जो वो शायद वो बताकर सेलिब्रेट करना चाह रहा हो, लेकिन मैंने सेलिब्रेट तो नहीं किया, वो उल्टा ये बोला, राइट. तो ये मैंने रिपीट किया पैटर्न. तो इसी तरीके से हम बहुत सारे ऐसे पैटर्न रिपीट करते हैं, अच्छे भी रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है. बहुत सारी चीजें हम इस तरह की करते हैं, लेकिन ये ओवर कंपनसेट भी करते हैं कई बार. ओवर कंपनसेट का कोई एग्जाम्पल आप शेयर करना चाहोगे? नहीं तो मेरे माइंड में एक बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट एक एग्जाम्पल है जो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया. हाँ जी कृष्णा जी, है कोई माइंड में? नहीं तो मैं तो शेयर करूंगी ही. चलिए, इंटरेस्टिंग, आपको रिलेट कर पाओगे इस एग्जाम्पल को भी. मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी, राइट. तो सैड बात ये है कि अब नहीं है वो,
लेकिन मेरी बहुत क्लोज रही है वो फ्रेंड। हम लोग साथ ही काफी अभी तक भी, जैसे कह सकते हैं ना, अभी तक भी उसके फैमिली के साथ हमारा रिलेशन है। तो वो 3 ब्रदर्स की एक अकेली सिस्टर थी, राइट। तो वो हमेशा इस बात से फ्रस्ट्रेटेड थी कि घर में मुझे ही बोल देते हैं सारे हर काम करने के लिए, भी मैं ही क्यों करूं। मतलब वो, उसको ये लगता था जब देखो मैं स्कूल से आई हूं मुझे ही कह रहे हैं पानी ला के दियो, खाना डालियो, ये करियो वो करियो। तो शी वॉज लाइक कि बहुत ज्यादा ऐसे उसको लगता था, अच्छा नहीं लगता था। मतलब कि फ्रस्ट्रेशन थी वो मेरे सामने, फ्रस्ट्रेशन उसकी दिखती थी मुझे। और उसने फिर आफ्टर मैरिज उसने ये सेम बात मुझसे शेयर भी की, और उसने ये शेयर किया, देखना अगर मेरे बेटी हुई ना, मैं उसको कोई काम नहीं करने दूंगी, इस तरह का कहा उसने। मतलब मैंने बहुत झेला है, मैं उसको कुछ झेलने नहीं दूंगी, मैं उसको कोई काम करने नहीं दूंगी। और रिजल्ट क्या हुआ, उसने बेसिक बेसिक काम जो एक बच्चे को आने चाहिए वो भी नहीं करने दिए, जस्ट बिकॉज कि लड़की है तो ये काम नहीं करेगी। मतलब गर्ल्स को बोल देते हैं ना कि तू ये खाना बना, तू ये कर, तू वो कर। सीरियसली उसने नहीं करने दिया। और अब क्या है, शी इज नाउ डूइंग अ जॉब इन दिल्ली। अभी मैं रिसेंटली उसके घर गई तो मेरे को वो सेम वही चीजें रिकॉल कर पाई मैं, कि रूटीन की जो बेसिक चीजें होती है ना, जो एक आना ही चाहिए, जो बेसिक बात होती है। खाना बनाना तो एक बात है, छोटा मोटा भी अपना अरेंज, अपना रूम ऑर्गेनाइज करना, अपनी कबर्ड खोलो तो मैंने कहा ये क्या अपने तुमने अच्छे से ये भी नहीं रखे हुए। कर लूंगी मासी, जब जरूरत पड़ेगी तब कर लूंगी ना। तो मैंने देखा कि यार हैबिट मेकिंग भी होना चाहिए ना, छोटी छोटी चीजें हमें बच्चों को बहुत जरूरी है, वो भी नहीं थी उसकी। और मतलब ये ओवर कंपनसेशन का रिजल्ट था, जो कि अच्छा नहीं था। इस तरह से भी हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लेते हैं कुछ चीजें। और इधर मैंने, जैसे मेरे 2 बेटे हैं, मैंने स्टार्टिंग से ही, अब ये भी ओवर कंपनसेशन कहें या जो कहें, मैंने स्टार्टिंग से ये सोचा था कि मैं तो अपने बच्चों को फुल्ली इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग से ही बनाने वाली हूँ। और स्टार्टिंग से ही छोटी छोटी चीजों पे मैंने ध्यान दिया। और आई एम सो प्राउड कि आज वो बाहर हैं तो उनको कोई ऐसे कोई चैलेंज नहीं है। खाना बनाना है या अपना घर संभालना है या अपने कपड़े लॉन्ड्री करने, कुछ भी, दे आर सो इंडिपेंडेंट। जो जो हमने अपने उसमें देखा, अपने चाइल्डहुड में जिस तरह के घर से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां पर भी बहुत ज्यादा मेरे नान के, मेरे दाद के, गर्ल्स को इतना ज्यादा इंफीरियर समझा जाता था और बॉयज को सुपीरियर। हर काम में गर्ल्स करें घर का काम के लिए तो गर्ल्स ही हैं, बॉयज तो पानी का गिलास भी उठा के नहीं पिएंगे, इस तरह के। तो ये कहीं ना कहीं वो पैटर्न को हम या तो रिपीट करते हैं या फिर ओवर कंपनसेट करते हैं। हाँ जी। आर यू एग्री? राइट, है ना। तो ये जो पास्ट के जो हमारे पैटर्न्स है ना, एक्चुअली जो हमारे पास्ट के जो एक्सपीरियंस है, ये हम पास्ट में नहीं छोड़ पाते, दे ट्रैवल विद अस। और वो कहीं ना कहीं हमारी प्रेजेंट पेरेंटिंग में ही रिफ्लेक्ट होते हैं। अननोइंगली, सबकॉन्शियसली हम वैसा ही बिहेव करते हैं, राइट। बिल्कुल सेम वैसे ही हम उसी तरीके से बिहेव करने लगते हैं। तो आज हम यहाँ पर ना, कोई ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट हेयर टू ब्लेम आवर पेरेंट्स, और वी कैन, आई कैन से जज आवर पेरेंट्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड देम, राइट। कोई वो भी कोई पेरेंटिंग ऐसा कोई सीख के तो आए नहीं थे। उन्होंने जो उनकी रूट्स जो प्रिपेयर्ड थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आगे ट्रांसफर कर दिया। एंड उनके अपने फ्लॉज रहे होंगे, अपने स्ट्रगल रहे होंगे। दे वर हैविंग देयर ओन अवेयरनेस एंड दे गेव अस व्हाट दे न्यू ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ हम इस ये कुछ नहीं करने वाले। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कैसे इस चीज को डील करना है, टैकल करना है, बाय बीइंग जस्ट अवेयर, राइट। इवन, अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये हम देखेंगे, इवन द बेस्ट पेरेंट्स मे हैव हर्ट अस, इवन डिफिकल्ट पेरेंट्स गेव सम पॉजिटिव्स, राइट। कोई है इंसिडेंस आपके मन में,
जैसे कि मेरी मॉम ने मेरे को एक हैबिट, मुझे आज तक भी मेरी वो हैबिट तब से चल रही है, मेरे चाइल्डहुड से। उस वक्त मुझे हमेशा गुस्सा आता था कि क्या है आपको, जब देखो मुझे बोल देते हो कि उठते ही अपने जो बिस्तर को, अपने जो हम लेते हैं ऊपर ओढ़ने वाली शीट को फोल्ड करके रखो, अपना बेड ठीक करके उठो। जस्ट ये हैबिट मेरी चाइल्डहुड से है, और आज तक भी ये सबकॉन्शियसली मेरी हैबिट बन चुकी है, और कहीं ना कहीं ये मेरी पास ऑन हो गई है मेरे बच्चों में भी वही सेम, कि उठो तो अपना बिस्तर ठीक करो, बाथरूम से बाहर आओ तो वाइपर लगा के बाहर आओ। सेम हैबिट मैं भी रिपीट कर रही हूँ। मतलब उस वक्त लगता था कि क्या आप तो पीछे पड़े रहते हो, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये एक डिसिप्लिन मैंने जो सीखा वही मैंने अपने आगे बच्चों को पास ऑन किया। आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड रियली फीलिंग सो प्राउड कि ये स्मॉल स्मॉल हैबिट है, जैसे कि हमने खाना खाया, अपने अपने बर्तन खुद किचन में रख के आओ, चाहे कोई भी आपके घर में सर्वेंट है या कोई भी है, तो आपने कभी उनको नहीं, तो अब मैंने देखा अननोइंगली कैसे बच्चे भी ऐसे सीख गए। मैंने उनको स्पेशल नहीं बोला कभी भी, शायद मुझे देखा होगा उन्होंने कि हमेशा कुछ भी हो जाए, अपने खाना खाने के बाद छोटे से ही अपने बर्तन खुद किचन में रख के आने हैं, और उसको भी थोड़ा सा पानी से धो के रखना है। ये वाली हैबिट मुझे देखा और उन्होंने भी सेम 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 पैटर्न। अब कहीं भी जाते हैं तो उनको है कि बर्तन रखो, अपना खाना खाया उसको थोड़ा सा पानी से धो करके फिर रखो, राइट। तो ये कुछ पैटर्न है जो हम रिपीट करते हैं। तो होता है ना कि बेस्ट पेरेंट्स से कई बार हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है वो अननोइंगली, जैसे मैंने वो शेयर किया आपसे कि मैंने अप्रिशिएट करने की बजाय उसको उसको सेलिब्रेट नहीं किया, इतने मार्क्स आपके, ये अगली बार इतने लेकर आना, राइट। एक और इसमें मैं शेयर करूंगी मेरा अपने बेटे की ही बात, कि उसको एक बार स्कूल में प्राइज मिला, जैसे होता है ना ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट निकालते हैं, तो कॉन्टिन्यूअसली 2 ईयर से मिल रहा था। फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, सिक्स सेवेंथ में मिला, एट्थ में नहीं मिला, एट्थ में थर्ड प्राइज मिला उसको। और उसने ना ऐसे रखा हुआ और आया वो स्कूल से, और क्या कहता है मुझे, मम्मा आज ना आपको उतना उतना मजा नहीं आएगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा आपको एक बात का। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? आज ना मुझे थर्ड प्राइज मिला है, ऐसे ऐसे मुझे शो कर रहा है, मुझे ना फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, थर्ड मिला है। अरे तो मतलब मुझे ना इस बात का शॉक लगा एक्चुअली कि इसने ऐसे क्यों कहा, कि इस तरह से, यानी कि इसने रिलेट किया इस बात से कि मम्मा को खुश करने के लिए फर्स्ट प्राइज ही लेकर आना है। देन थोड़ा मैंने न्यूट्रलाइज किया उसको कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है ना, किसी इस बार किसी और को चांस मिला। तो इस तरह से हमने करके कहा कि ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ही इसके लिए। हमें पता नहीं चलता, हम जाने अनजाने कई बार बच्चों से ऐसे बात कर लेते हैं जो कि उनको कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है। वी नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट। तो ये सेम यहाँ पर बात आती है अगेन फिर अवेयरनेस की, हमें क्या करना चाहिए। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्ट जो हमारा है। कृष्णा जी टाइम है ना हमारे पास? Yes, yes, we have. ओके We have. ओके ओके, मैंने Please. कहा ऊपर टाइम तो नहीं है। ओके, यस। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि वी आर नॉट हेयर टू जज आवर पेरेंट, जस्ट वी नीड टू बी अवेयर अबाउट द थिंग्स विच हैड हैपेंड ऑलरेडी, राइट, ताकि वो कुछ पैटर्न हम रिपीट ना करें, वो पैटर्न सेम पैटर्न हम आगे ना चलाएं। जस्ट हमें थोड़ा पॉज लेकर के उनके ऊपर थोड़ा सा हमें देखना होगा कि कैसे, हाउ पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने आप से ये 3 क्वेश्चंस पे रिफ्लेक्ट करना है, अपने आप से पूछना है, what do I want to continue, which pattern I am going to continue, what do I want to change, which pattern we need to change, and what do I want to create differently. We need to create new pattern, right? Any question और कुछ शेयर करना चाहेगा कोई? राइट, ये 3 क्वेश्चंस हमें लेकर के साथ में
चलना है कि कैसे करेंगे। तो अवेयरनेस क्या है ना, एक्चुअली अवेयरनेस गिव्स अ चॉइस हाउ टू रिस्पॉन्ड। ऑलवेज वी नीड टू बी कॉन्शियस हाउ टू create ourselves, how to change our pattern, right? How to continue, what patterns we need to continue. This is awareness. तो हम यहाँ पर एक छोटी सी विजुअलाइजेशन एक्टिविटी करने वाले हैं इसी को लेकर के, फॉर बीइंग मोर अवेयर। तो मैं स्टॉप कर रही हूँ स्क्रीन शेयर, और यहाँ पर अब हम, आर यू रेडी गाइज फॉर दिस, राइट? जस्ट अ सेकेंड। यस, मैं ना गैलरी व्यू में लेके आ सकते हैं क्या कृष्णा जी, गैलरी व्यू? एक मिनट। यस यस, आपका एक बार देखिए व्यू वाले आइकन पे, यू कैन डू दैट। हाँ हाँ, दिख गया मुझे। यस, राइट। तो प्लीज बी रिलैक्स्ड एंड वी आर गोइंग टू just 2 minute activity, visualization activity, and can come on camera if you're able. Close your eyes. I would like you to come on camera if you are feeling comfortable. Just close your eyes and deep breathe for 3 times. And return to your normal breathing. Just focus on inhale and exhale. Just watch your breathing movements. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and just notice that breathing movements. हो सकता है जाएगा आपका माइंड अवेयरनेस इधर उधर, कोई बात नहीं, इट्स ओके। Just bring that awareness to this activity, to your breathing movements. Now, see as go to back in your childhood time and go to that child, near to that child, and slowly and gradually and calmly tell her, I see you, I understand you, I know what are you missing, I want to give you. Just hug her. Can you talk a bit loudly, please? Can't- Okay. Thank you. Go to that child. Yes, I am repeating. And say her, I see you. I understand you. I know. What do you want? I want to give you. And hug her with love. Feel that emotional moment. Feel that intensity of that moment. And now, go to your parent in that childhood time and see your parent not as parents. Just see like as human being.
and say them, I understand. I know you had your own challenges. I choose differently. And again, hug them, feel them, feel the intensity of that moment. Say them, I miss you. I know you love me more than anything. I am so grateful to you, what you have given to me. Feel that gratitude from your heart. Thank you, thank you, thank you so much. I am proud of you. I exist because of you. Thank you, God. Thank you, universe. Now relax and slowly and gradually open your eyes. Now, just these are the questions we asked before. And this moment is really emotional, right? And now, just read these sentences. Why we react is in what carry is our awareness. We need to be aware about that. What is filled in our glass, right? How we parent is our choice because we are choosing awareness. We are not judging our past. We are learning from our past and we are repeating that pattern we want to. And we are changing that pattern. We want to change that pattern. We need to be aware. We need to be conscious about that patterns so that how we parent is our, we need to choose that. And at the end, I would like to say, you may not change your roots, but you can change the fruits with your awareness, right? We can change our fruits, our kids, our children, right? And yes, thank you so much. And with the continuation of this session, we'll bridge the next session, me and my parenting, right? Thank you so much for listening me so patiently. I would like to listen from you. How was the session and any question and any feedback if you want to share. Thank you so much again for listening so patiently. Thank you. Thank you, Rekha Thank ji. you, ma'am. Thank you. Thank you so much. That was such a beautiful session. Beautiful points, especially the last two slides were very, very beautiful. We are now I'm not open able for to see, questions.
Could you come on camera, please? Who is speaking? I'm not able to see. Please. Who was speaking? If anyone would like to post questions to Rekha ji, either you can post them in the chat or you can unmute and we will take your question. Yes. Yes. Or anything you want to share regarding this session, your stories or your past experiences or your instances, present experiences happened with you, the pattern you are repeating unknowingly, subconsciously. Now you need to be aware. Any incidents you want to share. Yes. Yes, Krishna ji. Yeah, thank you, Rekha ji. It was really very beautiful session. I mean, like within an hour, you just brought that awareness, like right from the beginning, all the things you picked up. Those were really the questions you brought in, like made us uh, recognize our patterns, like are we repeating or are we overcompensating. Like I just started asking myself, I started remembering things ki what was there during my childhood, as like my mother, how she was and how I got parented by my parents, and how it is reflecting in my own uh, own journey, देख own लगाएगा parenting. क्यों Purnima कभी ji, लगाने का I तारीख hope, क्या हो गई yeah, thank you, Purnima ji. Okay, so yeah, so each and every step was like relatable. So thank you so much for that. And yes, if you are asking like to share, so definitely, as I said, that my mother was a very strict person, and I'm also from that traditional family, but like conservative mindset was there, but at some grounds they were very progressive. They were very progressive. Now I realize ki what we all got at that point of time in 90s, when they the parents never sent their girl children to any kind of even sending to relatives house was a taboo at that point of time. But we were like I you know I am grateful to my parents that they sent us for camping and all those things. So that is why I could get this presidential award for Scouts and Guide, just because of my parents. They allowed me at that point of time. So now I think I am also a mixture of that conservativeness as well as the progressive thought कि हाँ कहाँ पे. Many a times, like my daughter, when she wants to go to her friend's house, so I become very skeptical. I try not to send her. Honestly telling, most of the times I try not to send her. ठीक है, I will tell कि बुला लो उन लोग को यहीं पे. Why are you not calling them all the time? You only go there. So at the back of my mind, it keeps on, कि पता नहीं वहाँ क्या environment होगा, कुछ challenge हुआ तो, all those things, right? And it is coming from my past, because my parents were also that skeptical. At one point you are saying कि वो हमें teachers के साथ camp में भेज दे रहे हैं.
राइट. ग्रुप कैंप्स में हम जा रहे हैं और पूरे वो 15 days 20 days का कैंप हो रहा है, उसमें वी आर गोइंग, दे आर ओके विद दैट. बट सेंडिंग टू अ रिलेटिव्स हाउस, सेंडिंग टू अ फ्रेंड्स हाउस, दे वर वेरी स्केप्टिकल. We hardly got any permission for that, you know. या तो छुप के जाओ या बड़ा लड़के जाओ. That was the scenario, and I'm repeating the same thing in my parenting. So now I just got that awareness. Thank you so much. And yeah, one more thing I would like to share here, the visualization thing. Really, it was heart touching. I just this was like very, you know, I was moved actually, like just Emotional going moment. to them, going to them, and just talking about that. कि अच्छा ठीक है, whatever happened and all. I accept. Thank you, showing my gratitude. So it was really a great experience. Thank you so much. Thank you. Thank you, Anybody Krishna else? ji. Thank you, Rekha ji. Thank you. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Actually, I learned a lot from this forum. When I deliver my speech, even then I learned so many things at that time also. This is a new experience for me for this topic, which is very close to my heart, really. Looking forward. Thank you so much, Nandini, Thank you. for hosting beautifully. Thank you, Krishna ji, for Thank you. inviting me on this forum. Thank you. Thank you. Thank Good you. night. And good night to our participants. Thank you so much for being part of today's evening. It was wonderful to have you Yes, along you with would us. like to share something, Lekha ji? Yes, Lekha ji. Yes. Lekha ji, You are can on mute. I'm You are on mute. just saying thank you so much. Thank you, Lekha ji. Thank you. Thank you. Yeah, just before closing, there is an announcement. As Rekha ji already told that we have a sequel. I mean, one more session we are going to have with Rekha ji, and that would be on me and my children. It was about me and my parent. I am as a child, and I just we discussed about the relationship with our parents, how we shared the relationship, and how it is impacting our present, you know, journey. And in next session, that will be on 14th, I guess. Yes, so we will like share the information about that. But yes, roughly I'm telling here, okay, we will be talking about me and my children. So again, that will be beautiful. That is going to be a beautiful session with Rekha ji only. So thank you so much for accepting this, Rekha ji. And yeah, thank you, Azel. She is our president of this Wiki Equitable Parenting Council, which has been established, you know, 3 years back, and she had been supporting the council with her guidance and all, and we are able to, you know, do say more than I think 90 plus sessions we have done till now. And yeah, we have covered all sorts of segments, like about finance, about like how digital, you know, discipline should be there, then related to our health, physical health, mental health. We had been covering like almost all aspects which impact a family life, or which supports, you know, to create a beautiful family, beautiful society. And yeah, we look forward to continue this journey. So thank you so much, everyone. Today I would like to, I mean, do we have Azel here? Azel, are you there? Okay, no, she's not there. Azel is not there. But yes, so like I would like to thank each and every, you know, council member to be present here. And thank you, Preeti ji, as she supported us with her Zoom link and all. And Nandini for, you know, moderating the session beautifully, presenting things. And Janice
for supporting with digital these flyers and all those things. So it's a beautiful community, beautiful. We are like a small family, which is like trying to impact the family life. We are like heading towards to create a beautiful family. So thank you so much, everyone. Thank you, Thank Nandini. you. Thank you, Thank Rekha. you. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Take care. Happy God night. bless. Happy. God bless you all.